Recording in progress. Suppose let I'm assuming let Cij is equal to cost of assigning job J to person I. Job J to person I. Suppose this is jobs and this side is your persons. Let Cij equal to cost of assigning job J to person I, such that xij का वैल्यू 1 होगा if job J is assigned to person I, is assigned to person I. और अगर असाइन नहीं है then the value of xij will be your 0 otherwise. This is the mathematical formulation for assignment problem. चेंज करें स्लाइड को सर 1 मिनट. अच्छा यस सर चेंज कर सकते. ओके ठीक है. अब देखो अगर तुमसे हम पूछे कि तुम्हारे पास 100 या 1000 by 1000 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वहां पे जॉब्स और पर्सन्स है, तो मैनुअली तो ये डिफिकल्ट है ना इसको कैलकुलेट करना कि तुम ये फाइंड आउट करोगे, हर रो को स्कैन करते जाओगे या कॉलम को, और फिर तुमको फाइंड आउट करना पड़े कि व्हाट इज द असाइनमेंट कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, तो इसके लिए एक रूल्स है, सम बेसिक रूल्स टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम. बेसिक रूल्स, इसके बाद हम लोग हंगेरियन रूल पढ़ेंगे, अभी फिलहाल बेसिक रूल्स देख रहे हैं. बेसिक रूल्स to solve any assignment problem. The first rule है rule 1 is your row reduction rule. The first rule is known as row reduction rule. Row reduction rule. Rule 2 is your column reduction rule. Column reduction rule. And rule number 3 is your assignment rule. These 3 rules is to be applied on any assignment problem to get the assignment cost. Now we will see what is row reduction rule, column reduction rule and assignment rule. सबसे पहले row reduction rule. What is the meaning of row reduction rule? Row reduction rule states that we have to select the minimum element or minimum smallest number from each row. हम लोग को हर रो से जो भी for a given matrix we have to select the minimum number from each row and then subtract that number from every other elements from that row. That means select the minimum element or number or smallest number from each row
each row and subtract it from all elements of that row reduction rule बोल रहा है. Similar way, we can give the definition of column reduction rule that we have to select the minimum element from each column and subtract it from all elements of that column reduction rule. इसमें क्या करना है? सेम वे we have to select the minimum number from each column and subtract it from all elements of that column. एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे. अभी रूल चेंज करें स्लाइड. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट रूल इज असाइनमेंट रूल. ये इंपॉर्टेंट है. कैसे असाइन करेंगे? असाइनमेंट रूल. इसमें फर्स्ट स्टेप है स्कैन ईच रो. Scan each row from start and assign it if there is a single zero. If there is a single zero, otherwise skip it. Otherwise skip it. असाइन करना है ईच रो को और हमको हर रो में देखना है. अगर सिंगल जीरो है तो उस रो को असाइन करेंगे. इफ देयर आर मोर देन 1 zeros फॉर एनी रो देन वी हैव टू स्किप दैट रो. इन नेक्स्ट रूल सेम थिंग विल बी अप्लाइड. स्कैन ईच कॉलम फ्रॉम start and assign it if there is a single zero in that column. Otherwise skip it. And last step assignment rule का है repeat steps 1 and 2 until all assignments are made. Rule ये है. फर्स्ट रूल इस असाइनमेंट रूल का. स्कैन ईच रो from the starting point and assign it if there is a single zero in that row. Otherwise skip that row and go for another row. Second is that scan each column from start and assign it if there is a single zero in that column. Otherwise skip. Third है तुम्हारा repeat steps 1 and 2 until all assignments are made. Okay. Change करें slide. Can I change the slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. See, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा. सिंपल. Solve the following assignment problem. Solve the following assignment problem for a given cost matrix. प्रीवियस स्लाइड का हम प्रॉब्लम ले रहे हैं 2, 6, 3
1 5 4 7 2 8 1 2 3 this is your jobs and here person A B and C A B C this is person and this is a cost matrix now solution सी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन given cost matrix is this इस तरह से हम लिख लेंगे जो भी given cost matrix है 2 6 3 1 5 4 7 2 8 सिर्फ एक पैटर्न तुम लोग हमेशा याद रखोगे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम रो देन कॉलम अगेन फ्रॉम रो देन कॉलम रो कॉलम मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट कॉलम अप्लाई किए फिर रो हमेशा रो फर्स्ट देन कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड ओके तो अब देखो फर्स्ट रूल कह रहा है कि रो रिडक्शन रूल वी आर अप्लाइंग रो रिडक्शन रूल on this cost matrix. The row reduction rules tells that we have to select minimum number from each row. हर रो से minimum number find out करना है और फिर subtract करना है उस एलिमेंट को सारे एलिमेंट्स के उस रो में. ओके अब बताओ फर्स्ट रो के लिए मिनिमम एलिमेंट क्या होगा? 2. तो 2 माइनस 2 ये 2 हुआ फर्स्ट तो 2 माइनस 2 0 6 माइनस 2 4 3 माइनस 2 1 फर्स्ट रो के लिए हुआ ये. उसी तरह से सेकंड रो के लिए मिनिमम एलिमेंट 1 तो 1 माइनस 1 0 5 माइनस 1 4 4 माइनस 1 3. ओके नेक्स्ट जो है थर्ड रो के लिए 2 7 minus 2 5 2 minus 2 0 8 minus 2 6. इसके बाद again we have to apply column reduction rule. Column reduction rule. सर थर्ड रो में पहले 0 होगा ना? थर्ड रो में तुम थर्ड रो का मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करो क्या है. अच्छा हाँ सर सॉरी ठीक है ना. असाइनमेंट रूल में एक रूल को हम स्किप कर दिए हैं शायद इस केस में आ जाएगा उसको लिखना होगा. चलो कॉलम रिडक्शन रूल अगर हम देखें तो देखो फर्स्ट कॉलम के लिए मिनिमम एलिमेंट क्या है? 0 तो नो चेंज दैट मीन्स 0 है तो फिर जितना भी एलिमेंट्स है एज इट इज रह जाएगा. 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 5 माइनस 0 0. नेक्स्ट एलिमेंट के लिए फिर से तुम्हारा नेक्स्ट कॉलम के लिए सेकेंड कॉलम के लिए 0 है दैट मीन्स नो चेंज 4 4 0. ठीक है फिर थर्ड कॉलम के लिए देखो मिनिमम एलिमेंट क्या है थर्ड कॉलम का? 1. ठीक है तो 1 माइनस 1 0 3 माइनस 1 2 6 माइनस 1 5. अब यहाँ के बाद हमको असाइनमेंट रूल अप्लाई करना. हियर वी हैव टू अप्लाई मतलब आफ्टर अप्लाइंग रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन नाउ वी हैव टू अप्लाई असाइनमेंट रूल. यहाँ पे असाइनमेंट रूल हमको अप्लाई करना. असाइनमेंट रूल में तुम देखोगे तो सबसे फर्स्ट में हम लिखे हैं स्कैन ईच रो दैट मीन्स स्टार्टिंग करना रो से उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो स्कैन करना ईच रो इफ दैट रो कंटेन्स ओनली सिंगल 0 देन वी विल असाइन दैट रो अदरवाइज स्किप कर जाएंगे. अब देखो फर्स्ट रो में सिंगल 0 है फर्स्ट रो नो सर दैट मीन्स वी विल स्किप दिस रो फिर गो फॉर सेकेंड रो. सिंगल 0 है
Yes, sir. Yes, sir. तो वी विल असाइन दैट जीरो, इस जीरो को असाइन करेंगे, सेकेंड रो असाइन होगा इस तरह से। दिस स्क्वायर हम जो शेप बना रहे हैं, दैट मीन्स दिस इंडिकेट्स दैट वी हैव असाइंड सेकेंड रो। सेकेंड रो को जिस समय असाइन करेंगे उसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम में, उसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम, इस कॉलम में हम चेक करेंगे। इफ देयर इज जीरो देन वी हैव टू क्रॉस दैट जीरो। वो रूल हम छूट गया, हम ध्यान नहीं था इसे। यहाँ पर जो लिखे है, स्कैन ईच रो फ्रॉम स्टार्ट एंड असाइन इट इफ देयर इज अ सिंगल जीरो, अदरवाइज स्किप इट। ऑल्सो यहीं पे लिख दो, ऑल्सो क्रॉस ऑल zeros corresponding the assigned zeros in that column or row, in that column or row। अगर रो ले रहे हैं तो कॉलम को देखेंगे, अगर कॉलम ले रहे हैं तो रो को देखेंगे। सेम फॉर यहां पर, ऑल्सो क्रॉस ऑल जीरोस। एक मिनट, वो जो स्टेप्स लिखे हैं, ऑल्सो क्रॉस ऑल जीरोस corresponding the assigned zeros and that column, वो तुम्हारा सेकेंड स्टेप्स में भी आएगा। एक्चुअली ये रूल हम सही तरीके से नहीं लिख सके यहाँ पे। अच्छा, हम इसको बाद में लिख लेंगे, पहले प्रॉब्लम देख लो, ठीक है, याद हो जाएगा रूल। जाए प्रॉब्लम के पास आए। कैन आई गो टू? Yes, sir. Yes, sir. फिर से हम यहाँ पे असाइनमेंट रूल किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं वो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट रो को स्कैन किए, देखे कि इफ देयर इज अ सिंगल जीरो और नो, देयर इज नो सिंगल जीरो इन फर्स्ट रो, वी विल देन गो टू सेकंड रो। सेकंड रो में अगेन वी विल सी whether there is a single zero or not. If there is a single zero, we will assign that zero and see the corresponding column in that assigned zero. उस कॉलम में हम assigned कॉलम में हम देखेंगे if there is a zero. If there is a zero, then we will cross that zero. Clear है? Yes, sir. उसके बाद फिर नेक्स्ट रो में हमको तब तक स्कैन करते जाना until we complete all rows for a given matrix. लास्ट रो फिर आए, फिर चेक किए, is there a single zero in last row? Yes, sir. So again we will assign that zero. फिर से हम उस जीरो को असाइन करेंगे। इसको जैसे ही असाइन करेंगे और इसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम को हम चेक करेंगे whether any zero occurs in that column or not. है कोई उस कॉलम में? No, sir. No, sir. दो एलिमेंट है 4 4, तो फिर कंप्लीट हो गया रो वाइज। अभी हम रो वाइज स्कैन कर रहे थे, अगेन गो फॉर कॉलम वाइज। अब कॉलम वाइज हम स्कैन करेंगे। नेक्स्ट गो फॉर कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी असाइंड है, देन स्किप दैट कॉलम। ये ऑलरेडी असाइंड है क्योंकि सिंगल जीरो, ये क्रॉस जो कर दिए हैं, दिस जीरो विल नॉट बी काउंटेड, ये जीरो आप काउंट नहीं करेंगे। अब फर्स्ट कॉलम को अगर तुम देखोगे तो ऑलरेडी ये सिंगल जीरो और ये ऑलरेडी असाइंड है, तो स्किप दैट। नेक्स्ट गो फॉर सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में भी इफ यू सी देयर इज अ सिंगल जीरो, वी विल असाइन इट, बट इट इज ऑलरेडी असाइंड, देन अगेन वी हैव टू स्किप दैट कॉलम। फिर थर्ड कॉलम में तो देखो, थर्ड कॉलम में सिंगल जीरो है, Yes, sir. Yes, sir. तो वी विल असाइन दैट जीरो। अब सॉल्यूशन जो लिखेंगे, कॉस्ट जो तुम्हारा होगा, सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट जॉब 1, मतलब ये मैट्रिक्स को देखो जो फाइनल सॉल्यूशन आया है और कंपेयर इट विथ प्रीवियस ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो दैट मींस फर्स्ट जॉब इज असाइंड टू व्हिच पर्सन? C. C. Second job is assigned to which person? A. A. And third job is assigned to B. B.
अब कॉस्ट हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं. फर्स्ट है सी को, दैट मीन्स ₹3. सेकेंड है ए को, दैट मीन्स ₹1. एंड थर्ड है बी को, दैट मीन्स ₹2. तो 3 + 1 + 2 ₹6. अब इससे मिनिमम कॉस्ट नहीं हो सकता. दिस इज योर आंसर. समझ में आया? दिस इज योर ऑप्टिमम. ठीक है. Yes, sir. एक Yes. और एक क्वेश्चन और लेते हैं. सपोज ये मैट्रिक्स ले रहे हैं 4x4 का. दिस टाइम आई एम टेकिंग 4x4 मैट्रिक्स. कल भी इसी टाइम में क्लास होगा. नाइन 10 में. टेन 5 13 10 5 13 15. ठीक है. नेक्स्ट है 3 9 3 9 18 3. नेक्स्ट है 10 7 3 2. नेक्स्ट है 5 11 9 7. This is your cost matrix. पर्सन ए बी सी डी एक तरफ दे रहे हैं 1 2 3 4. इसको सॉल्व करना है. आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे? वी विल अप्लाई रो रिडक्शन रूल. रो रिडक्शन रूल अप्लाई किए. रूल तो मैट्रिक्स क्या बनेगा? टेल मी. फर्स्ट रो में क्या है? वैल्यू मिनिमम वैल्यू 5 है. दैट मीन्स 10 - 5 5 5 - 5 0 13 - 5 8 15 - 5 10. ठीक है. Yes, sir. सेकेंड रो के लिए क्या होगा? मिनिमम एलिमेंट 3 है. दैट मीन्स -3 0 9 - 3 6 18 - 3 15 3 - 3 0. थर्ड रो के लिए मिनिमम एलिमेंट 2 है. तो 10 - 2 8 10 7 - 2 5 3 - 2 1 2 - 2 0. लास्ट रो के लिए तुम्हारा 5 है. तो 5 - 5 0 11 - 5 6 9 - 5 4 7 - 5 2. Now go for column reduction. First column contains 0. That means no change. 5 0 8 0. Second column 0 6 5 6. Third column 1 है तो 8 - 5 7 15 - 1 14 1 - 1 0 4 - 1 3. लास्ट कॉलम में भी कोई चेंज नहीं. अब इसके बाद असाइनमेंट असाइन करेंगे. तो फर्स्ट रो में इफ देयर इज अ सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो Yes, sir. इसको असाइन किया और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को देखेंगे, कोई जीरो नहीं है. ठीक है. फिर नेक्स्ट सेकेंड रो में मल्टीपल जीरो स्किप कर गए. थर्ड रो में भी मल्टीपल जीरो स्किप कर गए.